दोस्तों एक वीडियो है बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड उसमें वेदांत सूद का एक कमेंट है. सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट यू सेड दैट द ऑफिसर्स who judge us and sit in the conference hall have a high level of experience and we can't cut their Charlie. Sir, these officers who retire from SSB open their academies and coach students. My question is, if they have such high level of experience, then why don't they train candidates aptly? Why do they cut Charlie of us? वेदांत सूद का सवाल है. वेदांत सूद, एक बात में एक लाइन में इसका आंसर दे सकता हूँ. एसएसबी के कोचिंग में जो लोग कड़वा सच बोलते हैं उन्हें लक्ष्मी कम मिलता है, जो मीठा झूठ बोलते हैं उन्हें लक्ष्मी ज़्यादा मिलता है. दैट्स नंबर वन. और लक्ष्मी किसको पसंद नहीं है? अच्छे पैसे आ रहे हैं. अगर आपको बेवकूफ़ बना के मुझे अच्छा पैसा मिलता है और मेरे अंदर अगर इंटीग्रिटी नहीं है, देश के प्रति मेरा लॉयल्टी नहीं है, तो मैं लक्ष्मी के लिए झूठ भी बोल सकता हूँ. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा. जो लोग जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, सिविलियन इंक्लूडेड, जो डीआईपीआर के हैं, इन सब का ट्रेनिंग डीआईपीआर ने कराया है. किस चीज़ में कराया है? पर्सनालिटी के असेसमेंट में कराया है. याद रखना, किस चीज़ में कराया है? पर्सनालिटी के असेसमेंट में कराया है. हमें क्या नहीं कराया? पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का ट्रेनिंग नहीं दिया है. और जब हम लोग एसएसबी छोड़ के बाहर आ जाते हैं कोचिंग में हमारा काम पर्सनालिटी असेसमेंट करना नहीं है. पर्सनालिटी का गैप को आइडेंटिफाई करके वो मेथड आपको बताना है जिसके थ्रू उस गैप को आप भर सकते हो. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी असेसमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. और आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीआईपीआर ने हम लोगों को पर्सनालिटी असेसमेंट करना सिखाया है, ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, बिफोर दैट लेट मी अपडेट यू दैट द 2 weeks A4SOP offline composite batch is available at Nagpur. The classes will be conducted at A4SOP Sahas, the camp. The address is given here. You understand that A4SOP is the only research-based DIPR, DRDO appreciated SSB interview guidance program. So the program highlights will be, that will be a fully 2 weeks residential program, pick and drop facility from the Nagpur railway station to the Sahas camp and back after the termination of the course will be given. Hostel facility separate for boys and girls with excellent vegetarian food will be provided. Recreational and adventure sports facilities will be made available to you. Sahas is anyway an adventure campus with almost 38 acres of land. Full-fledged faculties consisting of GTO, Psych and Interviewing Officer will be available with complete training infrastructure. The SSers will also stay in the campus, so you'll have a longer interaction, thus more meaningful interaction beyond the classroom limits. 500% clarity is guaranteed. That is the key strength of A4SOP. It is based on the concept of self-management leadership, which will be integrated into the training process. No rote memory whatsoever will be employed. Absolutely, it will be honest training where you will have to work and we will be telling you the gap and the areas where you need to work and how to work. So these are the program highlights. To register, 2 numbers on which you can contact is 9511266172 and 9090099035. You can call or WhatsApp in these 2 numbers. Do share it with your friends. And इसके अलावा A4SOP online service is also available, and a full psychological test assessment with its video-based feedback will be given to you, one-to-one, one-on-one interaction, all your 12 theory responses, and the congruence between WAT, SRT and the SD will be established to you. And next is online personal interview itself will be available. GTO as of now is not available. We'll consider as and when it is possible. In order to register, 8275577650 is the number on which you'll contact. Do share it with your friends. इसके अलावा this is the website for A4SOP, www.a4sop.in.
and this is the FOSP helpline 9090099035. For any kind of assistance oblique clarification, you can contact on this number, you can call oblique WhatsApp. And FOSOP is the FOSOP YouTube channel. If you're not already subscribed, do subscribe it, like it, and for all videos, do post your comment if you like it, and do share it with friends so that they also benefit. Now let's come back to the topic, development. अब assessment में हमें क्या सिखाया, तीनों टेक्निक में, दैट इज GTO, साइक एंड इंटरव्यू में हमें क्या बताया कि एक लड़का आएगा, उसको अपने अपने टेस्टिंग टूल्स है, साइकोलॉजिस्ट अपना, GTO अपना और इंटरव्यू ऑफिसर अपने तरीके से क्या करेगा कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या है उस एंट्री का, उसके एज के अनुसार, वॉट एवर एंट्री इज, एंड वॉट इज हिज PLP's प्रेजेंट लेवल, मतलब आज का क्या लेवल है और उससे क्या अपेक्षा है और उसके बीच में कितना गैप है, डेल्टा। ये हमें तीनों टेक्निक में निकालना DIPR ने बताया। उन्होंने बताया कि हर फैक्टर में दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन, और अगर उससे नीचे आता तो वो डेल्टा कितना है, और उस डेल्टा को हमको ये देखना, उस डेल्टा को हमको 4 डायमेंशन भी करना, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 जिसको कि मैं L1, L2, L3, L4 के तरीके से बोलता हूँ, 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। एंड वी हैव ऑल्सो बी टोल्ड कि वी हैव टू लुक फॉर बैलेंस पर्सनालिटी। बैलेंस मतलब इन चारों डायमेंशन में, लेकिन हमें क्या पाया जाता है कि वो बैलेंस नहीं है, देयर इज एन इम्बैलेंस, एंड दैट्स व्हाट आई कॉल इट डेल्टा। और उसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑफ सब बताया हुआ, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बोलना कि ये एवरेज, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑफ सब क्या है ये एवरेज, एंड बैलेंस पर्सनालिटी क्या है। ये 2 सेपरेट वीडियोस में बनाने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड यू टेल मी, यू हैव टू पुट योर कमेंट्स कि सर ये वीडियो हमें चाहिए, एक्सप्लेनिंग व्हाट इज एवरेज ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज बैलेंस पर्सनालिटी, आई विल मेक इट। तो एक ट्रेनेबिलिटी फैक्टर है, उसके अंदर जो मेजर 4 फैक्टर है, मेनी अदर्स, मेजर 4 है, OAR, PLP's present level performance, age of the candidate and duration of training. Now OAR GTO के पास नहीं होता, present level performance तीनों लोग अपना अपना निकाल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO, इंटरव्यू, based on what you do. एज आपका फिक्स्ड है, बिकॉज अगर NDA वाला तो सबसे कम होगा, NDA 10+2 DS, एंड TGC है 77 तक हो सकता है, CDS वाला 24-25 तक हो सकता है, एंड सर्विस एंट्री हो तो whatever, टेरिटोरियल आर्मी है तो 42 तक हो सकता है। नाउ एज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका OAR अच्छा करना और आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस को ऊपर करना वो आपके हाथ में, दैट इज ओके। सो इन 4 फैक्टर्स, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, सोशल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, एक्सपोजर एंड ऑल दो स्टफ। उसके बारे में अगर आप बोल दोगे तो एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा ट्रेनेबिलिटी फैक्टर के ऊपर, जिसमें कि इस 4 के अलावा और क्या क्या चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। नाउ टू कट इट शॉर्ट, ये तीनों टेक्निक में DIPR ने हमें क्या बताया है, आइडेंटिफाई द गैप कि उसका प्रेजेंट लेवल कहाँ है, एक्सपेक्टेड कहाँ पे है, और उस गैप को क्या ट्रेनिंग से भरा जा सकता है। ऑल्सो ट्रेनेबिलिटी फैक्टर, OAR, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, एज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर हमें लगता है इस गैप को भरा जा सकता है, आपको रेकमेंड कर देंगे, और अगर लगता है नहीं भरा जा सकता, आपको नॉन रेकमेंड कर देंगे, एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर, ऑल दोज थिंग्स हमको पता है। और दिस इज व्हाट हैज़ बिन ट्रेन टू अस एज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। लेकिन जब हम कोचिंग में आ जाते हैं, जैसे मैं हूँ, कोचिंग में आते हैं तो हमारा काम पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, हमारा काम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जब आप मेरे पास आओ, हक से पूछ सकते हो, सर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बिहाफ में क्या क्या करने वाले हो। बाकी जगह भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो गोलमोल कर देंगे। मैं सीधा बता रहा हूँ, वी यूज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, और उसके अंदर आपके फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, वैल्यू डायमेंशन में विल शो यू द गैप, विल ऑल्सो टेल यू द मेथड टू हाउ टू ब्रिज इट। और ये 14 डेज में करना बड़ा मुश्किल है। मैं इससे पहले 1 मंथ का क्लासेस करता था आपको कॉम्पोजिट बैच को, बट 1 मंथ में प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को छुट्टी नहीं मिलता, सवाल करते सर बाकी सब तो करते, तो मुझे भी मजबूरन 14 डेज में किया हुआ है। नाउ सिंस वी आर शिफ्टिंग टू नागपुर, तो इस 14 डेज को रहते हुए भी हम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग को डबल करके ऑलमोस्ट 1 मंथ ड्यूरेशन का ट्रेनिंग को उस 14 के अंदर इंटीग्रेट किया होगा, बिकॉज नागपुर में वी आवरसेल्फ आर गोइंग टू बी स्टेशन इन दी कैंप इटसेल्फ, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो कोचिंग में हमारा पहला काम है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल एंड वैल्यू क्वेश्चन के ऊपर आपका गैप दिखाना। जब आप एयरफोर्स में आओगे, एग्जैक्टली आपको पिन पॉइंट बता जाएगा कि दीज आर द डेफिशिएंसीज कमिंग इन ऑल दीज फैक्टर्स, आपको बताया क्या जाएगा, आप खुद ही पता चल जाएगा, दैट्स आवर अप्रोच। एंड उसके बाद में इसे भरना पड़ेगा, कोचिंग वालों को इसे भरना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेयर वी डोंट
do justice, है ना. So first thing is to identify the gap, that's a delta. Second thing is to tell you how to bridge the gap, and third thing that is to be done by the candidate is to take concrete action to bridge the gap. तो तीन चीज चाहिए कोचिंग वालों के लिए. What is that? Knowledge, what to change, why not to, what will happen if you don't change, what is the gap. This is the component number one. Component number two जो कि कोचिंग वालों ने देना है is a skill. That is how to bridge this gap. This method also has to be given. And the last is desire or the इच्छा शक्ति. This coaching cannot give. This has to be there with you. अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो नॉलेज एंड स्किल लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो किसी भी चीज़ को परिवर्तित करना तो तीन चीज़ चाहिए. नॉलेज, व्हाट टू चेंज, why to change, what are the consequences if you don't change. Number two, the skill, how to change that. And number three, desire. ये कोई कोचिंग नहीं दे सकता, कोई भी कोचिंग नहीं दे सकता, ये आपके अंदर होना चाहिए. समझ में आ रहा तो बताना. When you come to AFOSP, 1 and 2 will be absolutely clearly given. That's why I say 500% clarity. 3 मैं नहीं दे सकता. क्यों? वो तो आपके अंदर होना चाहिए. अगर आपके अंदर करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो मैं कैसे कराऊंगा. You can take a horse to the water, but you cannot make the horse drink water. तो उसका अपना चॉइस है. समझ में आता तो बताना. जब तक ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपके अंदर ये डेल्टा का या ब्रिजिंग नहीं हो पाएगा. क्या समझ में आया इसके ऊपर कमेंट करना. नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि आपको पता है DIPR ने हमें सिखाया नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. DIPR ने क्या सिखाया? पर्सनालिटी असेसमेंट. फिर हम अपने आप को गॉड वुड बोल देते हैं. एंड देन लुक एट दिस, देयर इज अ वीडियो, दिस मैन कैन हेल्प यू क्रैक SSB इंटरव्यू इवन इफ यू लैक इन कोर क्वालिटीज या OLQs. ऐसे जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो मज़ा आता है. इमेजिन, मतलब आपके अंदर कोर क्वालिटी का वीकनेस है, तब भी इधर कोचिंग सेंटर्स जो बोलते हैं कि हम इसको करके दे देंगे ना. दिस इज कंप्लीटली अ गड़बड़. सो टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड, and how to write amazing tips and tricks, how to write branded SD. Now this does not work like that. So यहाँ पे जो कोचिंग का प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंट की जगह आता नहीं है. ना उन्होंने अपने आप को DIPR ने सिखाया नहीं है, ना खुद को उसके काबिल बनाया. ऐसे PhD VHD कर लिया, दाढ़ी बना लिया, लेकिन द पॉइंट इज कि हमें आता नहीं है. तो हम क्या सिखाते हैं कि गैप को कैसे छुपाना है, हाउ टू मास्क द गैप, है ना. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जगह पर्सनालिटी मैनिपुलेशन में चले जाते हैं. और उसका उदाहरण है कि हम मुखौटा लगाना सिखाते हैं. इसका मैं एग्जांपल से बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट है. इस गिफ्ट के दो हिस्से, एक है जो बाहर से दिखता है गिफ्ट रैपिंग, और एक है उसके अंदर का जो गिफ्ट है. ये पर्सनालिटी मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, गिफ्ट के रैपिंग को सुधारते हैं. लेकिन आपको समझ में आएगा कि कोई भी गिफ्ट हो उसको खोले बिना उसके अंदर का चीज़ नहीं निकलेगा. तो SSB में जो पर्सनालिटी असेसमेंट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ द मास्क. वो गिफ्ट को फाड़ देंगे लेकिन अंदर काम नहीं किया, अंदर मास्किंग किया हुआ है ना. दिस मैन कैन हेल्प यू क्रैक SSB इवन इफ यू लैक इन कोर क्वालिटीज. नाउ हाउ डू यू डू दैट? कोर क्वालिटी वीक है तो आपको तो सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए, आपको तो SSB जाना ही नहीं. लेकिन देयर आर पीपल उसे कि उसके बाद भी हम कर देंगे. अब ये किसके हित में है? ये क्या देश के हित में, SSB के हित में, कैंडिडेट के हित में, या उस कोचिंग वाले के हित में? अब सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल लिखा है, जैसे WAT का वर्ड है, उसमें वर्ड है लाई. पुलिस यूज लाई डिटेक्टर्स टू ट्रैप ए क्रिमिनल. ये तो पुलिस ने क्रिमिनल की बात किया. इन द सेम वे SSB ऑल्सो हैज़ अ मेथड टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर टेलिंग ट्रुथ और वेदर यू आर टेलिंग लाई. हाउ? बाई TAT का 70% वेटेज, बाकी चीज़ें कंफर्मेटरी टेस्ट, कि आप TAT में एक्शन में क्या लिख रहे हो, वर्ड्स लेवल में कैसे सोच रहे हो WAT, एंड SRT सिचुएशन को वर्बली कैसे सॉल्व कर रहे हो, और आपके क्लेम्ड वैल्यू SD में क्या है. जब इन चारों को जोड़ के दिया जाता है तो पता चलता है वेदर यू आर टेलिंग लाई और ट्रुथ, है ना. लाइंग इज अ बैड हैबिट. देखो लाइंग इज अ बैड हैबिट लिखा है लाई WAT पे. नीचे देखना, नीचे में क्या दिखा हुआ, नीचे बोला है लाई करो, है ना. लायर्स आर बैड पीपल. ये तो हो गया WAT का लाई के ऊपर 3 रिस्पॉन्स. अब हम आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा है हेंस राइट योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली. ऑल्सो वाइल राइटिंग अबाउट योर वीक एरियाज don't mention anything about the core qualities like power of expression, social adaptability, sense of responsibility, cooperative nature, liveliness and courage. क्या एडवाइस दिया? ऊपर बोला है लाइंग इज अ बैड हैबिट, लायर्स आर बैड पीपल. और SD में बोलता है कि इफ यू हैव वीकनेस इन योर कोर क्वालिटीज देन डू नॉट मेंशन देम, बिकॉज इफ यू मेंशन देम दे विल नॉट टेक यू.
व्हाट डज इट मीन इज कोर क्वालिटी को छुपा लो और अंदर घुस जाओ कैसे भी. मैनिपुलेशन, डेवलपमेंट. दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूं. Also, while writing about your weak areas, don't mention anything about the core quality. कोर क्वालिटी में अगर कोई वीकनेस हो उसको मेंशन नहीं करना. जैसे कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप पे सोशल एडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, मतलब एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. आर्मी फंक्शन इन टीम. आर्मी हैज़ टू फंक्शन एज अ टीम. और यहाँ पे आपको एडवाइस दिया जाता है कि इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन सोशल एडजस्टमेंट्स को छुपा दो, नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे. नेक्स्ट बोलता है अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका लो है, आप जिम्मेवारी नहीं लेते हो, प्रोक्रेस्टिनेटर हो, आप चीज़ों को टालमटोल करते हो, तो उसको बाहर पता नहीं चलने देना, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे, है ना. कोऑपरेटिव नेचर अगर ना हो तो आप इसे छुपा देना, नहीं तो आपको हटा देंगे, क्योंकि कोर क्वालिटी है ये. वीकनेस में आप निकल जाओगे. अगर लाइवलीनेस, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर वो नहीं है, आप गोबर की तरह लेट जाते हो, इसे छुपा देना, क्योंकि ये वीकनेस से फौज लेगा नहीं. एसएसबी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, उसको छुपा देना. अगर करेज, फिजिकल करेज या मॉरल करेज आपके अंदर नहीं है, तो एक कोर क्वालिटी का वीकनेस है, छुपा देना, नहीं तो एसएसबी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा. डू यू थिंक it is a right advice to give? क्या people with core quality weakness should they get recommended? आपका जवाब क्या है? should they get recommended? आप recommend होना चाहते हो, लेकिन एसएसबी को DIPR ने क्या सिखाया होगा? आपको ये देखना पड़ेगा कोचिंग वाले आपको क्या सिखा रहे और DIPR ने एसएसबी को, एसएसएस को क्या सिखाया होगा. देखो, जब आपका ट्रेनिंग, कोचिंग वालों का डायरेक्शन, एसएसबी का सिलेक्शन सब कुछ देश के हित में होगा, तो नेचुरली एवरीबडी विल बेनिफिट. यहाँ पे किसका हित हो रहा है? नेक्स्ट एक और देखते हैं. नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन. मतलब आप स्ट्रेस प्रोन हो तो ये कभी बाहर ही नहीं आना चाहिए. यानी कि आप उस स्ट्रेस प्रोन को रखते हुए फौज में चले जाओ, आप सुसाइड कर लोगे, आप मर जाओगे यार, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी है ही नहीं, और आप ऑफिसर बन जाओगे. इससे किसका भला होगा? क्या तुम्हारा भला होगा? You will not be able to perform and discharge your duties or obligation, what is expected from you. Is this training based on integrity? क्या ऐसा बुक लिखने वाला, ऐसा ट्रेनिंग देने वाले के अंदर व्यक्तित्व में जुड़ाव है? Is he a man who is loyal to the organization while in service and after service? सोच के देखो, while in service, ऐसी सोच में उन्होंने उधर भी किया होगा कुछ कुछ. सो दोबारा देखना. नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी इन सब फियर ऑफ फोबिया. बताओ, एक मिलिट्री लीडर बनने वाले लड़के को एक कोचिंग वाले सर बोलते हैं अगर आप स्ट्रेस प्रोन हो, आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है और आपके अंदर फियर ऑफ फोबिया, डर हो, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ फेलियर, इन सब चीज़ों को छुपा दो. अगर ये पकड़ा गया तो सेलेक्ट नहीं होगा. किसके हित में है ये ट्रेनिंग? किसके हित में? Never write sentences that will reflect that you have strong craving for power and wealth. अगर strong craving for power and wealth ना होता तो ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं कराता. लक्ष्मी चाहिए, बंदा मर जाए चलेगा. सो इन्होंने ये छुपाया, अब ये उभर के बाहर आ रहा है, क्योंकि अब ये आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट से बाहर आ गए. मौका मिल रहा है कि बोले वाले बच्चों को बेवकूफ़ बनाओ. लुक एट दिस ट्रेनिंग. सूद समझ में आ रहा? सूद. मेक सेंटेंसेस. अच्छा, WAT में एक और एडवाइस दिया हुआ है, मेक सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट योर बिलीव्स एंड वैल्यूज. ना आपका बिलीव्स एंड वैल्यूज तो आपने ऊपर ही लिखा दिया, नेवर शो वीकनेस इन कोर क्वालिटी, यू आर ए लायर. आपने तो बिलीव सिस्टम ऑलरेडी दिखा दिया, और नीचे लिखते हो मेक सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट योर बिलीव्स एंड वैल्यूज. यू हैव सुसाइडल टेंडेंसी, योर फियर ऑफ फोबिया, you have low stress tolerance, that's your core value. और आप अभी यहाँ लिखते हो reflect your beliefs and value. For example, when you write a sentences for the word dirty, wearing dirty clothes projects a person poorly. What about when you teach children to manipulate their responses? It doesn't not show a poor mindset. ये आपके मन के स्टेट को नहीं दिखाता. सो दिस इज अ डेंजरस ट्रेनिंग. एंड सो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई सच पीपल डू इट. बिकॉज वन, मनी इज इन्वॉल्व.
एक एक बैच में 150 आते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो 25,000 इंटू 150, दैट इज द काइंड ऑफ मनी. वाई शुड आई टेल यू कि तुम्हारे अंदर सुसाइडल प्रॉब्लम है, तुम नहीं बन सकते, बता दिए तो 25,000 कम हो जाएगा. इसलिए कौवा मोर बनाने की ट्रेनिंग है, और आपको लगता है कि कौवा मोर बन के SSB में जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा. नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट योर स्ट्रेस प्रोन एंड सुसाइड. दिस ट्रेनिंग इज डेंजरस. इससे अगर गलती से लड़का सेलेक्ट भी हो गया, वो ट्रेनिंग एंड्योर नहीं कर पाएगा, बिकॉज के अंदर बेसिक फ्लॉज है, कोर क्वालिटी में वीकनेस है. ही इज नॉन एडजस्टिंग, ही हैज पावर एंड वेल्थ के लिए हंगर है, ही हैज गॉट फियर ऑफ फोबिया, फियर ऑफ हाइट, ही हैज गॉट सुसाइडल टेंडेंसी, स्ट्रेस प्रोन है. क्या ट्रेनिंग है यार, नंबर 1 बने हुए. सो दिस इज अ डेंजरस ट्रेनिंग. आई होप वेदांत सूद आपको समझ में आ गया. तो हम ऑफिसर्स का अपने इंटीग्रिटी पे ये सवाल उठाता है, ऐसे ट्रेनिंग देने वालों के खुद के इंटीग्रिटी पे ये सवाल उठाता है कि हाउ कैन समबडी राइट सच थिंग इन बुक्स and then claim that he is number 1. That's because they are personality manipulators. Manipulation में number 1 है. इस पिक्चर को देखो, सब लोग भीड़ के पीछे चल रहे हैं क्योंकि किसी कोचिंग वाले ने बोल दिया यही सूरज है. वो सबसे पीछे एक बंदा बोलता है अरे पीछे क्या है, उसके बाद भी चल रहा है. आप लोग भी जब तक हम कोचिंग वालों के ट्रेनिंग को समझोगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग के नाम से, आप हमारे मीठे झूठ में फंस जाओगे. सूद, वेदांत सूद. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी असेसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी मैनिपुलेशन. अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आना चाहता है, यू मोस्ट वेलकम टू AFOSOP एंड आई एम विलिंग टू बी क्वेश्चनड. कोई मेरे ऊपर इस तरह से अगर वीडियो बना दे और मेरे ऊपर सवाल उठाए तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ. क्या ये इस तरह के ट्रेनिंग देने वाले जवाब देंगे? दे कैन नेवर गिव बिकॉज दे पर्सनालिटी मैनिपुलेटर्स. सो अगर आपको भी पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कराना है, गो देयर. और अगर डेवलपमेंट कराना है, यू कम टू नागपुर. 12th June 2023 से शुरू है. Come to Nagpur and I'll tell you what is the difference between personality development and personality manipulation. Come to Nagpur. So वेदांत सूद को भी रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बिटवीन पर्सनालिटी असेसमेंट जो DIPR ने हमें सिखाया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि कोचिंग वालों का काम है आपको करवाना, पर्सनालिटी मैनिपुलेशन जो हम कोचिंग वाले करते हैं. सो हम बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन क्या करते हैं वो ध्यान रखना. आर वी डूइंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आर वी डूइंग पर्सनालिटी मैनिपुलेशन? अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कम टू AFOSOP एट नागपुर. अगर मैनिपुलेशन करना है, बहुत जगह जा सकते हो. मुझे ज़रूर कमेंट सीख के बताना. यूट्यूब के वीडियोस को देखना है AFOSOP के, यू विल रियलाइज व्हाट इज इट दैट आई एम स्पीकिंग. काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट, like it if you like this video, and do post your comment क्या समझ में आया. This is a serious game. ये manipulation करके कौवा मोर बन के जाने का नहीं है. It is not deeper than what you've thought, and we'll see it more in the coming videos. Thank you and may God bless you. Thank you very much.